दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग के इस लेसन में हम आज आपको सिखाने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 में जो क्वेश्चंस हैं। सो हाउ कैन बी ड्रॉ पिक्टोग्राफ एंड वी विल लर्न द सॉल्यूशन अबाउट द questions related to pictograph. So dear, what do you mean by pictograph? First of all, I want to tell you that what is the meaning of pictograph. A pictograph represents data through pictures of objects. It helps answer the question on the data at a glance. तो पिक्टोग्राफ क्या है कि किसी भी डेटा को पिक्चर्स के फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी डेटा जो हम पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स नॉन एज पिक्टोग्राफ। ओके, सो हियर इज द एग्जांपल। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटी in a class of 30 students during the previous week. So this is the data. This is represented by pictograph. You can see here, yes, one symbol represent, you can say that in the right hand corner this symbol represent one absentee. So on Monday there are how many pictures? 5 pictures. It means on Monday 5 students are absent. On Tuesday there are 4 pictures. It means Tuesday there are 4 students are absent. On the Wednesday there are only 2 symbols, that is pictures. It means there are only 2 students are absent. On Thursday no pictures. It means there are all students are present. On a Friday here is only single picture. It means only 1 students are absent. And on Saturday you can observe how many students are absent after the counting of the pictures. Now dear, here is the first question. The total number of animals 5 villages are as follows. Village A 80 and village B 120 animals, village C 90 animals and village D 40 animals and village E, this is 60 animals contains. Okay, now dear, prepare a pictograph of these animals using the symbol to represent 10 animals and answer the following question. So here is first question. How many symbols represent animals of village E and which village has the maximum number of animals, and C, which village has more animals, village A or village C. So dear, enjoy the solution of this question. बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और आनंद उठाइए इस वीडियो का। So let us start. Okay. So dear, start this. Here is the first question. Total number of animals in 5 villages are as follows. That is village A equal to 80 animal, village C equal to 90 animal, village E equal to 60 animals, village B equal to 120 animal and village D equal to 40 animals. And prepare a pictograph for these animals using the symbol क्रॉस सर्कल। आपको सिंबल दे दिया है कि आप क्रॉस सर्कल को यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। So first of all we will represent the given data into the pictograph. So here is the question dear. First of all we will write the question. The question number 1 here, number of animals. Yes, village A, this is given that village B
village C and village D. After that, all village E. So the data is given here just 80, 120, village A 80 and village B 120, village C that is 90 and village E just equal to village D 40, given that 60. And this data is given, and now you will represent this given data into the pictograph. So dear, first of all what to do in this case, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इस तरह से टेबल बना लेंगे जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, और उस टेबल में फिर आप डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया, you can see here this is the table for representing this data into the pictorial form. आपको भी इसी तरह से कॉपी में बनाना है, तो हमने इसको बनाने के बाद ये लाइन ड्रॉ कर ली, और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाएंगे केवल। इसको क्लोज कर देंगे। After that, if you draw separate all row, then it is better. अगर आप इसे अलग अलग रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो और अच्छा है, जैसे मैंने इसको कर दिया है। देखिए मैंने ये रो नंबर 1 बना दी, after that row number 2, row number 2 means for village, this is for village B, and this row is for village C. After that, next row for village D, and for last this is for village E. Okay, so here first of all we will write in this table, that is in the first column here village, and in the this you will write animals, इसे आप नंबर ऑफ एनिमल्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स। और यहां पे ही आपको सिंबल भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यहां पे आप लिखेंगे सिंबल को, दैट इज दिस सिंबल इक्वल टू 10 एनिमल्स। मीन्स 1 क्रॉस सर्किल इक्वल टू 10 एनिमल्स। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट हेयर, फर्स्ट वन इज विलेज ए, यहाँ पे आप लिखेंगे विलेज ए, और फिर लिखेंगे यहाँ पे देखेंगे विलेज ए हाउ मेनी एनिमल्स, 80। तो यहाँ पे 80 एनिमल्स है, सो हाउ मेनी सर्कल you will draw here, because one circle is, yes correct, तो हाँ, सिंपली अगर मान लो ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही है
तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 80 आपको दिया हुआ है और यहाँ 10 एनिमल्स 1 सर्कल, तो आप इसे डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 सर्कल ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, 5, 6, 7, 8, और ये सभी सर्कल क्रॉस करना है क्योंकि यही सिंबल है, तो सबको क्रॉस कर लिया। So this is the representation for village A. After that, we will take village B. Village B, you can observe here is 12, 120 animals. So how many circles you will draw here? बताइए। Yes, your answer is correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and one more 12. तो हम इसके लिए 12 सर्कल और सभी को इंटर क्रॉस कर लेंगे। सो दिस इज क्रॉस, and now moving for next village, village number C. So we will write here sound microphone. Please put up your microphone. Yes, of course. Now next here is village D. So here is village D saying that total number of animals in village D, this is 40. So how many circle? फोर करना है और फोर को क्रॉस कर देना है। सो दिस इज 4 सर्कल। And after that, next moving for next village, that is village E. Yes, you are बिल्कुल सही बताया। 5, 6 कर देना है। So this is 6 circle. Okay. Now पिक्टोग्राफ हैज बीन कंप्लीटेड, पिक्टोग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर देना है। सो हियर इज part number A, and in part number is given that how many symbol represent animal for village E. E के लिए कितने सिंबल? या आप 6 symbol represent, yes correct, represent the animals of village E. अगला बी पार्ट है, which village has the maximum number of animals? Yes, yes, correct answer. So you here village C नहीं, village B, village B had animal. इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेज सी हैज मोर, ये जो है विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी, विलेज ए और सी में बताना है। यस, सी के लिए आप लिखेंगे फॉर पार्ट नंबर सी, एंड हियर इज गिवन दैट फॉर पार्ट नंबर सी विलेज सी हैज मोर एनिमल्स, village C has village
सी हैज मोर एनिमल फ्रॉम विलेज एनिमल्स देन विलेज ए भी लिख सकते हो, फ्रॉम भी लिख सकते हो, देन विलेज ए। ये तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको पिक्टोग्राफ कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे so here is question number 2 is given that total number of student of his school in different years shown in the following table। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपको कहा गया है प्रिपेयर्ड पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग द सिंबल। सिंबल आपको बुक में दिया है, क्वेश्चन में दिया है टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 100 स्टूडेंट के लिए आपको क्या सिंबल है, तो यहाँ पे कैसे है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो डाटा है 1996 में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 1998 में भी दिया हुआ है 1998, इसके बाद 1999 का भी नहीं दिया है, 2000 का दिया है, तो हमने यहाँ पे 2000 लिख लिया। 2000 के बाद आपको 2002, इसके बाद 2004 का दिया हुआ है। तो क्या डेटा दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या दिया है। 96 में दिया है 400 स्टूडेंट्स, 98 में दिया है 535 और इसके बाद 2000 में 472 और फिर 2002 में दिया है 600 और इसके बाद लास्ट में दिया 623। तो इस तरह से आपको ये डेटा दिया हुआ है। ओके डियर, सो नाउ क्वेश्चन सेज दैट यू विल रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या है आपकी ईयर दी हुई है, या क्या है 96 98, व्हाट इज इट, दिस इज ईयर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ईयर, दिस इज ईयर, 100 स्टूडेंट, मतलब अगर आप ये एक सिंबल 96, तो आपने यहाँ पे लिखा 1996 और यहाँ पे अब आप सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बार मैंने इस तरह से टेबल बना दिया, यहाँ पे ईयर है तो इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब आप देखिए कि किस तरह से इसे करना है आपको। यस ऑफ कोर्स, सो हियर गिवन दैट इन 1996 देयर आर 400 स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो नंबर है इस नंबर को आप डिवाइड कर दो तो आपको सिंबल पता चल जाएंगे। सो हाउ मेनी सिंबल, यस, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 सिंबल आ गए, तो आप 4 सिंबल इस तरह से बनाएंगे। यस, करेक्ट करेक्ट। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे बनाना शुरू किया, वन लाइन खींच लिया, लाइन भी छोटा सा ही खींचेंगे इस तरह से और यहाँ पे ये लाइन खींच देंगे और ये छोटा लाइन खींच देंगे, यहाँ पे 2 डॉट और ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड आप करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये लाइन ड्रॉ, ये और आपका ये दूसरा यहाँ पे डॉट, फिर इसके बाद नेक्स्ट ये आपने ड्रॉ किया, इस लाइन को ऐसे करेंगे एंड दिस इज नेक्स्ट वन, आप इस तरह से सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज 4 सिंबल। तो आपने ये 4 सिंबल बना के रेडी कर दिए, दिस इज द 400। Now you will take the next year, this is 1998। 1998 को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, you will see here this is 505, इसलिए मैंने आपको ये बताया कैसे करना है। यस, तो
कोई स्टूडेंट्स प्लीज कीप साइलेंट। हाँ, पता चल गया, ये आंसर यही है हाँ। अरे साइलेंट भी रहिए, एक ही बार आंसर देना होता है। मैंने आपको कहा यू विल रिप्लाई ओनली वन टाइम्स, ये नहीं है 500 500 हाफ 500 हाफ 500 हाफ कह के रह जाएंगे, तो फिर ना मैं आपकी सुन पाऊंगा ना आप हमारी सुनेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई स्टूडेंट्स का माइक ऑन है और वो अपनी घर की पर्सनल बातें कर रहे हैं और यहाँ पे आवाज आ रही है, मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपना घर पे बात कर रहे हैं। सो प्लीज पुट ऑफ योर माइक, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप माइक को पहले बंद करिए, फिर आप घर में जो भी बातें मम्मी से पापा से जिससे भी करनी है कीजिए। लेकिन आप माइक ऑन करके करेंगे तो सारे बच्चे ही डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप खुद तो पढ़ नहीं रहे हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग्स। तो आप बता रहे थे, ये आपको समझ लेना है, बस थोड़ा सा समझ लेना है। when the number is less than 50, ठीक है, 50 से अगर ये नंबर कम है तो आपको क्या करना है, हाफ सिंबल बना लेना है इसके लिए, ठीक है। जैसे देखिए 472, यहाँ पे 72 दिया है, जबकि आपको जो सिंबल दिया है वन सिंबल रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। तो 72 मीन्स जो भी आपका नंबर आधा अधूरा है उसके लिए आप हाफ सिंबल बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 623, तो इसके लिए 23 के लिए हाफ सिंबल बनेगा और ये 600 के लिए पूरा 6 हो जाएगा। 35 है तो इसके लिए भी हाफ सिंबल बनाएंगे और 500 तो पूरा 5 हो जाएगा। और यहाँ 72 दिया है तो इसके लिए भी आप हाफ सिंबल बनाएंगे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर यहाँ एक और क्वेश्चन दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है। तो देखिए नेक्स्ट के लिए 535, तो आपको यहाँ 5.5 सिंबल बनाना है। 1 2 3 4 5, पहले 5 कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से मैंने 5 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है उसका हाफ बनाएंगे, तो हाफ को कैसे करना होता है, देखिए आप इस तरह से फुल सिंबल बनाएंगे, पूरा ये माउथ जो स्टूडेंट्स का है ये पूरा बना लेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें आप ये लेफ्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट को छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई लाइन नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं हाफ सिंबल, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 535। ओके, now next, in the year 2000 there are 472, तो 472 के लिए कितने पिक्चर बनेंगे? Yes, सही बताया, 4.5 बनेगा नहीं। तो हमने यहाँ पे देखिए 4 सिंबल बना, यस, ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 3, आफ्टर दैट दिस इज 4 एंड नेक्स्ट वन, आप इसको तो पूरा बनाएंगे और यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो वन साइडेड, तो ये हो जाएगा 2000 के लिए। अब नेक्स्ट ईयर इज गिवन दैट 2002, 2002 में 600, तो कितना हो जाएगा? 6, यस यस, 1 2 3 4 5 6 और 6 को फटाफट कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपके मैंने 6 सिंबल
बना दिए। क्योंकि ये आपका होल नंबर था 600, तो इसमें कंप्लीटली 6 सिंबल बनेंगे। दिस इज रिप्रेजेंट 600 स्टूडेंट। आफ्टर दैट मूविंग फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2004। तो 2004 6 और हाफ हो जाएंगे, तो आप यस। तो यहाँ पे जो फेस बनेंगे वो आपके टोटल 7 फेस होंगे इस तरह से। और जो आप बाकी का पार्ट है उसको लास्ट में हाफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फुल हो गया, इसको भी फुल करना है, इसको भी फुल करना है, और यहाँ भी आप इसे फुल करके कंप्लीट कर देंगे। दिस इज ऑल्सो फुल, एंड नाउ दिस वन इज अगेन फुल, और इसको आप हाफ करेंगे। इज रिप्रेजेंट 623। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2002? 2002 में कितने सिंबल आप? यस। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 सिंबल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5, और यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे 6 सिंबल, 6 सिंबल। और फिर बी में पूछा इन द ईयर हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द ईयर 2000 1998। 1998 में कितने सिंबल हैं? हाँ, यस। यहाँ पे 5.5 लिखेंगे, और 5.5 को इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5 कंप्लीट सिंबल। आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 कंप्लीट सिंबल एंड 1 इज इनकम्प्लीट, 1 इज इनकम्प्लीट सिंबल। तो ये बी पार्ट का आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान से समझना वो क्वेश्चन क्या है। उस क्वेश्चन में पूछा गया है, यस, prepare an other pictograph of student using any other symbol each representing 50 students. Which pictograph do you find more informative? आपसे ये पूछा गया कि आप एक और पिक्टोग्राफ बनाओ, उसमें 1 सिंबल इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करना है। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको मैं बता देता हूं, वो पार्ट भी बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए कि उसको कैसे करना है। व्हेन दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट ओनली 50 स्टूडेंट्स। तो अब हम आपको ये पार्ट नंबर बी बता रहे हैं, दिस इज द पार्ट नंबर बी। तो क्वेश्चन वही है सेम, और यहाँ पे 50 कर दिया है। तो अब आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे ये 50 है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिंबल 52 या 100 होता है ना, तो ये सिंबल हैं वो ठीक डबल हो जाएंगे। यहाँ भी 2 से तो 4 की जगह, और यहाँ, यस, यस, करेक्ट करेक्ट। हाँ, सही बता रहे हो। तो यहाँ पे ठीक डबल सिंबल कर देने, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 एंड 5 दिया है ना, तो 5 नहीं, 2 हाफ नहीं, हाफ ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आप देखो यहाँ पे वैसे भी पता कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया है 535 98 में, तो आप इसे 50 से डिवाइड कर लो। 50 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपका 10 आएगा, और कुछ पार्ट और बच जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 कंप्लीट सिंबल और एक हाफ और बनाना है, तो वो कंप्लीट कर देंगे। तो अगर हम इसी को पूरा कर देते हैं बी पार्ट को, तो देखिए आप कैसे करोगे।
आपका केवल इतना चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 सिंबल हम यहाँ और बना देते हैं, तो ये पार्ट नंबर बी हो जाएगा। आपका हो गया, और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो ये 6 हो गए, 7 8 9 10 और ये हाफ रहेगा, तो इसको कंप्लीट कर दिया, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, इसको भी कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, और ये आपका हाफ रहेगा, हाफ की जगह हाफ ही रहना है, और ये जो फुल सिंबल है वो डबल हो जाएंगे। फुल सिंबल जितने भी दिए, जैसे यहाँ पे कितने सिंबल फुल है, 4, तो 4 सिंबल का कितना हो जाएगा, हाँ 4 सिंबल का 8। अब यहाँ पे एक चीज बस समझनी है, जो जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन बताया है। यहाँ पे देखो 2000 में, 2000 में आप देखो 72 दिया है, 72 दिया है, तो आप यहाँ पे 450 पहले ले लीजिए, 450 लेंगे, तो 450 को 550 से डिवाइड करो, तो देखो 0 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 9 सिंबल कंप्लीट हो गए। और अभी यहाँ पे 22 और बचा हुआ है, तो 22 के लिए हाफ सिंबल बनेगा, हाफ सिंबल मीन्स आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि अगर ये नंबर 550 से कम है, ठीक है, तो केवल हाफ सिंबल बन जाएगा, और अगर ये 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे 1.5 सिंबल बनेगा, 1.5, 72 के लिए क्या बनेगा 1.5, और 4 का तो डबल हो ही जाएगा, 4 का डबल 8, और 72 के लिए 1.5, तो 8 और 1 कितना हुआ 9, 9.5 सिंबल आपको यहाँ पे बनाने हैं। जबकि यहाँ पे 23 में देखिए, 23 तो 50 से कम है, तो 50 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे केवल हाफ सिंबल ही बनेगा। 6 का डबल कर देंगे, 6 का डबल होगा 12, और 23 के लिए हाफ सिंबल, तो यहाँ पे यही चीज समझनी है, 35 ये 50 से कम है तो केवल हाफ सिंबल ही बनेगा। 5 का डबल कर देंगे तो 10, देखिए यहाँ पे 10 ही बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हाफ। लेकिन 72 में 4 का डबल करेंगे तो 8, और 72 चूंकि 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे 1 और हाफ सिंबल और बनेगा, 50 के लिए तो 1 हो जाएगा, और फिर 22 यहाँ और बचेगा, उसके लिए हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 9.5 सिंबल आपको बनाने हैं इस 2000 के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, आप ये 5 हो गए, इसके बाद ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये हाफ, तो ये आपका हाफ रहेगा, और ये कंप्लीटली कम फुल रहेंगी, ये भी कंप्लीट रहेगा, और ये भी कंप्लीट रहेगा। ये किस लिए कंप्लीट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 72 था, तो 72 मैंने आपको बता ही दिया है कि आप यहाँ पे 450 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 450 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 9 सिंबल पूरे आ जाएंगे, और फिर जो आपने ये छोड़ रखा है 22 उसके लिए हाफ सिंबल आ जाएगा, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 9.5 सिंबल। और 2002 में तो सीधा 600 दिया है, तो 600 का डबल कर देंगे, 6 का डबल कर देंगे, तो 6 का डबल तो 12 होता है, तो यहाँ पे 6 तो बने ही है, 6 और बना देने, 1 2 3 4 5 6, ये सिंबल आपको कंप्लीट कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ 600। आप लास्ट बचा हुआ है, तो लास्ट में 612 दिया हुआ है, तो 612, तो 6 का आप डबल कर दीजिए, 6 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 23 के लिए हाफ सिंबल और बनेगा, तो यहाँ पे 12.5 हो जाएगा। 12.5 का मतलब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सिंबल तो पहले से ही बने हैं,
और एक हाफ बना है 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे 12 एंड हाफ करेंगे। तो देखिए ये पूरा कर दिया, और यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो जाएगा 12, और इसको हम बनाएंगे कितना, हाफ। तो ये हो गया हाफ, और ये पूरा कंप्लीट रहेगा। ये भी पूरा कंप्लीट रहेगा, इसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे, और ये भी आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। तो ये पिक्टोग्राफ टेबल क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट था उसके लिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें ये पूछा गया था लास्ट में कि विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव। तो ये सेकंड वाला मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सब क्लियर पता चल रहा है। और पहले वाले में क्या था कि पहले वाले में अगर 35 नंबर था तो भी हाफ बन रहा था, 72 था तब भी हाफ बन रहा था, तो दोनों के लिए हाफ हाफ ही बन रहा था, तो वो क्लियर नहीं हो रहा था। 72 के लिए हाफ सिंबल, 23 के लिए भी हाफ सिंबल, तो बताओ 23 और 72 इक्वल कैसे हो सकता है। लेकिन वो सिंबल एक बनाना ही पड़ेगा, चूंकि आपको यहाँ पे दे दिया गया था 1 सिंबल इक्वल टू 100, तो वो कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि 23 के लिए हाफ सिंबल होगा, 72 के लिए 1.5 होगा, तो ये मोर इंफॉर्मेटिव है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सेकेंड पिक्टोग्राफ is more, second pictograph is more informative. So dear तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना